So in this present lecture we shall be talking about impedances today, and in fact this is something that arises when we deal with AC circuits, because we saw in case of the DC, if you're going to provide DC supply to a circuit or a network which comprises of inductor and capacitor as well along with the resistor, then we see that if let's say you connected a inductor across a DC supply, then it was understood that this inductor behaves as a short circuit for a DC supply. Likewise, if you connect a capacitor across a DC supply, so this works like an open circuit. So in fact, if you have a steady DC supply which is provided to inductor and capacitor, then the properties of the inductor and capacitor, the behavior of inductor and capacitor will not come into picture during the steady state DC supply, where the inductor would work as a short circuit element while capacitor would work as an open circuit element. But the things change when we switch to AC supply. So let's say we are given an AC circuit, and that AC circuit comprises of resistor, inductor and capacitor, all the three elements. So now what happens is, and we'll see this today, that in fact we learned the reactances, the inductive reactance and capacitive reactance in the previous lectures, and we saw that if you remember, the inductive reactance which was given by XL was equal to omega L, and the capacitive reactance XC was equal to 1 upon omega C. So from these expressions we learned that the reactance that arises because of inductor will be finite only when you have an AC supply having angular frequency omega, while in case of capacitor you again will be having a finite reactance when you have an AC that is supplied to this capacitor. In case if you're going to give a DC supply to it, which means that the omega for DC would be 0. So providing a DC supply to a circuit that comprises of the inductance, the reactance for that circuit having DC source would be what? 0, which means that no reactance will be offered to the DC circuit because of inductance, because of presence of inductance, while the presence of capacitor in DC network, where omega is taken as 0, and the reactance it would offer would be infinite. So this corresponds to open circuit, while this corresponds to short circuit, while this becomes the open circuit element. And thus we are not going to have any use of inductance and capacitance in the DC circuits during steady states. Now if you connect these two elements, the inductor and capacitor, along with the resistor and AC circuits, so let's say we have an AC supply and we connect first of all a resistor to it, it's a purely resistive element R, and then we connect a purely inductive element L, and third we connect a purely capacitive element C. So I've shown these three elements individually because we just want to learn that how they behave when they are connected to AC supplies. So in fact this particular R is going to offer the same resistance that or is going to work, or is going to show the same behavior as it usually shows in case of DC supplies. So here you will be having the relation given as V equal to I R.
while here we, instead of writing in terms of, because we have inductor, this inductor is going to provide certain restriction to the flow of current. So I have not shown current here. Let's show this current I, and let's try to differentiate each of these. Let's say this is current that flows through capacitor and it's called as IC, and let's say this is VC, this is VL, this current is IL, this is VR, and this is IR. So this becomes VR equal to IR into R. Now in case of inductor, we normally, because inductor and capacitor in case of the AC circuits are going to offer certain restrictions. Inductor also offers a restriction, and that depends upon the frequency, because we saw that inductive reactance is equal to omega L, and since the reactance is proportional to frequency as well as the value of inductance, so higher the value of inductance, more will be the reactance. Likewise, if you are going to have the supply frequency large, in that case the reactance will increase, and this reactance is similar to the resistance R, but have a slight different behavior. And we normally, instead of writing this in terms of resistance, we write these things in terms of impedance. So impedance is something that comes into picture when we talk about AC supplies. So impedance of a resistor, a purely resistive circuit, Z, we denote impedance by Z. So impedance is given by Z. So for a purely resistive circuit, Z impedance is R. While for, so it's written here. So we see that if you're going to use an element R, the impedance is Z equal to R. So we normally, instead of talking in terms of R, because in case of AC circuit we do not say, we do not talk about R, we talk about impedance. While the impedance that is offered in case of a circuit that comprises of the element as inductor only, the impedance is given as Z equal to J omega L. In fact, here we write Z is given as JXL, where XL is omega L. So we get impedance in case of the inductive circuit as Z equal to J omega L. Likewise, in case of capacitor, the impedance we get is Z equal to minus JXC. So here is a slight correction, that there should be a minus sign also included here. So this should be Z equal to minus 1 upon J omega C. Okay, in fact they have taken J in the denominator, so it's fine. So if you're going to take J from numerator to denominator, so the minus sign will be eliminated. So impedance in case of capacitor is given as minus JXC, and this can be written as minus JXC is 1 upon omega C. So if you're going to take this J into denominator, then what you get is you're going to get is plus 1 upon J omega C. So I guess this is clear to all. Now there are a few things that you may argue, that why are we taking positive in case of inductor and negative in case of capacitor. So this is all this can be understood from the phasor diagram of inductor and capacitors. So while if you see that, if you remember that the voltage from the term we learned civil, we saw that in case of inductor we have voltage that leads the current by 90 degree, while in case of capacitor the current leads the voltage by an angle of 90 degree. So if you draw the phasor for, let's say, inductor, so for inductor, if you're going to show this as voltage phasor, then the current would be lagging by an angle of 90 degree. In case of capacitor, if this is the voltage, then current would be leading by an angle of 90 degree. So is that clear? So this was something that had already been discussed. And if I say that the impedance, so impedance is something, impedance can be thought of as the resistance.
सिमिलर टू द रेजिस्टेंस दैट वी हैव लर्न इन केस ऑफ डीसी नेटवर्क। तो जिस तरह से आपने डीसी में रेजिस्टेंस को पढ़ा है, इसी तरह से इम्पिडेंस एसी में आप रेजिस्टेंस ना कह के इम्पिडेंस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इम्पिडेंस इज़ ए ब्रॉड टर्म दैट टेक्स इनटू अकाउंट all the three elements R, L and C. So all the properties that hold for resistance in DC network will also hold for impedance in case of AC network. जिस तरह से आप रेजिस्टेंस डील करते हैं DC में, फॉर इंस्टेंस अगर मान लीजिए आपके पास में, ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में शो किया, मैं दिखा देता हूँ, चलिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास में, अभी क्लियर नहीं है चीज़, मैं दोबारा आऊँगा इस चीज़ पर, अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास में डीसी सर्किट में दो या तीन रेजिस्टर कनेक्टेड हैं सीरीज़ में, लेट्स से R1 और R2 सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। तो आप ये कहते थे कि इसका नेट रेजिस्टेंस जो है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2। तो सेम प्रॉपर्टी इसी तरीके से पैरेलल, अगर R1 R2 पैरेलल है तो उस केस में आप पैरेलल की रिलेशन लिखते थे R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो अप्लाई होती हैं रजिस्टर के केस में फॉर डीसी सर्किट्स, दे विल ऑल बी एप्लीकेबल टू इम्पिडेंसेस फॉर AC सर्किट्स, which means that if suppose that you have impedance given by Z1 and this is Z2, तो नॉर्मली इम्पिडेंस को हम, क्योंकि मैंने बताया कि इम्पिडेंस जो है इट विल बी इनकॉर्पोरेटिंग ऑल द थ्री एलिमेंट्स, रेजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, तो इसको हम बॉक्स से भी शो करते हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी रेजिस्टर बना हुआ है और Z लिखा हुआ है तो उसको समझ लीजिए कि वो इम्पिडेंस ही है। तो जिस तरीके से आप क्या करते थे डीसी नेटवर्क में, रेजिस्टर अगर सीरीज़ में कनेक्टेड है तो उनको ऐड करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे, बिल्कुल सेम प्रॉपर्टीज़ आपकी इम्पिडेंस में अप्लाई होंगी। तो अगर आपका इम्पिडेंस फॉर एग्जांपल सीरीज़ में दिया हुआ है तो आपके इक्विवेलेंट इम्पिडेंस हो जाएगा Z1 प्लस Z2। इसी तरीके से अगर पैरेलल में इम्पिडेंस दिया होता तो आपका नेट इम्पिडेंस या इक्विवेलेंट इम्पिडेंस Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 हो जाएगा। और वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो रजिस्टर पे होल्ड करती हैं, फॉर एग्जांपल स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन, जो शायद आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आप लोग पढ़ें, या वोल्टेज डिवीजन रूल ये पढ़ा होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल, वो सारे डिवीजन रूल्स जो हैं वो इम्पिडेंस के केस में भी फॉलो होंगे। ठीक है, बात समझ में आई सबके? ठीक है, तो इसमें हाँ मुझे ये बताना था कि इस केस में आपके पास में जो V और I के बीच में रिलेशन आता है उसमें Z की वैल्यू आती है प्लस JXL। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से प्रूव करते हैं कि Z की वैल्यू आप नॉर्मली लिखते हैं V अपॉन I से, या AC की बात हो रही है ना, तो Z इज़ इक्वल टू क्या होता है, Z इज़ इक्वल टू बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी अप्लाई होगा क्योंकि रजिस्टर के केस में ओम्स लॉ अप्लाई होता है, तो इम्पिडेंस में भी ओम्स लॉ अप्लाई होगा। तो Z इज़ गिवन एज V अपॉन I बाई ओम्स लॉ। अब अगर प्योरली इंडक्टिव सर्किट की आप बात कर रहे हैं तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में आपके पास में V की वैल्यू दी हुई है, लेट्स से VL, तो इम्पिडेंस ZL क्या हो जाएगा, कैपिटल VL, एंगल कितना है, फेजर के टर्म में बात करें 0, और करंट है IL, एंगल कितना है -90। इसको एक मिनट रुकिए, बैकग्राउंड में हटा देता हूँ। जी, तो IL आपके पास में दिया हुआ है। अगर इस फेज़र को देखें, IL इन केस ऑफ प्योरली इंडक्टिव सर्किट लैग्स बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, विच मीन्स दैट दिस एक्सप्रेशन वुड बी रिटन एज -90 डिग्री। कैपिटल VL और कैपिटल IL RMS वैल्यूज़ हैं। तो फिर इसको आप फर्दर लिखते हैं VL RMS वोल्टेज, IL RMS वोल्टेज, इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो +90 हो जाएगा। ठीक है, हाँ, VL अपॉन IL को हम लिख देते हैं XL, रिएक्टेंस, ये पहले भी पढ़ा था।
एक्स एल और एक्स यहाँ से मिलता है आपको। अच्छा, 90 डिग्री क्या होता है, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे जो आइलर आइडेंटिटी थी, तो इसका मतलब क्या है, कॉस 90 प्लस जे साइन 90 डिग्रीज। ये हो जाएगा एक्स एल कॉस 90 ज़ीरो हो जाता है इंटू जे साइन 90 1 हो गया। तो आपको क्या मिल गया, जे एक्स एल। इज दिस क्लियर टू ऑल? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? बिल्कुल जैसे आप रेजिस्टेंस को लेते हैं ऐसे ही इम्पिडेंस को लेके जी। एक बार रिपीट करिए क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं? अच्छा हाँ, अच्छा अच्छा, देखिए मैंने बताया कि इंडक्टर के केस में ये जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा था कल, सिविल CIVIL, ये आइडेंटिफाई करने के लिए है, याद रखने के लिए कि इंडक्टर के केस में वोल्टेज जो है दैट वुड बी लीडिंग द करंट बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और कैपेसिटर के केस में करंट वुड बी लीडिंग वोल्टेज बाय एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो मैंने फिर वो दोबारा फेज़र बना लिया VL और IL के बीच में। तो क्योंकि वोल्टेज 90 डिग्री लीड कर रहा है करंट से, इसका मतलब करंट जो है वो लैगिंग होगा बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री VL से। VL को रेफरेंस मान लिया है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि बाई ओम्स लॉ ZL इम्पिडेंस इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है, ये ओम्स लॉ लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, इस V को फेज़र फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि VL रेफरेंस है तो इसका एंगल ज़ीरो ले लिया है, और करंट इंडक्टर के केस में लैगिंग है बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो इसको हम फेज़र फॉर्म में लिखेंगे, पोलर फॉर्म में लिखेंगे IL एंगल माइनस 90 डिग्री, बिकॉज करंट लैग्स द वोल्टेज बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर आपने क्या किया, ये एंगल ज़ीरो है, ये माइनस 90 डिनोमिनेटर में है, जब इसको न्यूमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 90, और एंगल 90 को आप बाई आइलर आइडेंटिटी जो हम पढ़ चुके हैं, तो अगर आप प्रीवियस स्लाइड्स देखें, ये देखिए नीचे टॉप लेफ्ट साइड में, बॉटम लेफ्ट में जो है आइलर आइडेंटिटी लिखी है, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा सा इसको और, ठीक है, इसमें अगर आप देखेंगे ये क्या है, Z इक्वल टू R5 पोलर फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो एंगल फाई को आप लिख सकते हैं ई रेस्ट पर जे फाई, और ई रेस्ट पर जे फाई क्या होता है, कॉस फाई प्लस जे साइन फाई। इसका मतलब ये है कि एंगल फाई की जगह आप लिख सकते हैं कॉस फाई प्लस जे साइन फाई। ये बात समझ में आ गई सबके? ठीक है, यही काम हमने फिर यहाँ पे किया, इस जगह पे क्या किया हमने, यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे ना फिगर, तो एंगल 90 डिग्री को हमने लिख दिया कॉस 90 प्लस जे साइन 90, और कॉस 90 हो जाता है 0 प्लस जे साइन 90 होता है 1। तो इस ब्रैकेट्स के अंदर हमें मिला 0 प्लस जे इंटू 1, यानी जे बचा आपके पास में, तो ये एक्सप्रेशन मिल गया जे एक्स एल। मेरा ख्याल है किसी को डाउट तो नहीं। अब बात करते हैं कि, जी ठीक है, जी जी पूछिए। जी नहीं, हाँ देखिए, इम्पिडेंस जो है, जब आप बात करते हैं इम्पिडेंस की, तो उस इम्पिडेंस हमेशा फेज़र फॉर्म में आता है, क्योंकि जो आपका
असल में इसमें होता ये है कि आप फॉर एग्जांपल आपने आर एल सी पैरेलल सर्किट अगर पढ़ा होगा, तो आर एल सी पैरेलल सर्किट में होता ये है कि, चलिए मैं बता देता हूँ उसको। ये वोल्टेज है, ये रेजिस्टर है, फ्लैश हो रही है यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टर हो गया, इंडक्टर और कैपेसिटर। तो इन केसेस में क्या होता है, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज जो भी अपेयर हो रहा है दैट वुड बी इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज। सेम वोल्टेज अपियर्स अक्रॉस इंडक्टर एज वेल एज कैपेसिटर। तो तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा दैट वुड बी इक्वल टू दी सप्लाई वोल्टेज स्मॉल वी। लेकिन करंट इनके अलग अलग होंगे। आई आर, इसको अगर आप आई आर कहते हैं, इसको आई एल कहते हैं, इसको आई सी कहते हैं। तो अगर इस कोई आपसे कहता है इसका फेज़र डायग्राम बनाइए, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि वोल्टेज तीनों एलिमेंट्स के अक्रॉस सेम है, तो आप कहते हैं हमने एक फेज़र ले लिया, रेफरेंस मान लिया वोल्टेज को V, और आई आर क्या होगा, रजिस्टर का, जो रजिस्टर के थ्रू जो करंट है दैट, अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल आप V मान रहे हैं, स्मॉल v, तो आई आर इन फेज़ होगा या आउट ऑफ फेज़ होगा V से? इन फेज़ होगा। हाँ, रजिस्टर के केस में करंट इन फेज़ रहता है। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। और इंडक्टर के केस में हमने देखा कि करंट जो है लैग करता है बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, और कैपेसिटर के केस में लीड करता है बाई एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है। अब जो इम्पिडेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना Z, वो क्या है, दैट इम्पिडेंस इज वेरी सिमिलर टू रेजिस्टेंस एंड यू से दैट इम्पिडेंस इज गिवन एज V अपॉन I। तो इस सर्किट का अगर आपसे कोई इम्पिडेंस पूछता है, तो आप ये कहेंगे कि ये जो करंट सोर्स से निकल रहा है वो ये वाला करंट है। ठीक है। अब ये करंट जो है इसका क्या एंगल है वोल्टेज से, वो डिपेंड करेगा कि रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यूज़ क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर IC और IL बराबर हो गए तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ है एक दूसरे से, और बचेगा आपके पास IR, जो रेजोनेंस में आपने देखा होगा। खैर बहरहाल वो रेजोनेंस की बात नहीं करेंगे, लेकिन IC IL अगर बराबर हो गए तो आपके पास वोल्टेज और IR बचता है। तो आप ये कहते हैं इम्पिडेंस जो है वो V अपॉन IR आ जाएगा। लेकिन अगर IC या IL में से कोई भी चीज़ ज़्यादा होगी, फॉर एग्जांपल IL अगर बड़ा है IC से, तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ कहीं पे आएगा। मान लीजिए IL माइनस IC आपने ये लिया, ये फेज़र है, फिर IR और इस रिजल्टेंट, सब रिजल्टेंट का फिर फाइनल रिजल्टेंट आपने निकाला, तो ये I आ गया। ये कौन सा करंट है, ये वो करंट है जो सोर्स सर्किट को प्रोवाइड कर रहा है, ये वाला करंट है, रिजल्टेंट करंट। तो इससे पता ये चला कि इम्पिडेंस जो आप निकाल रहे हैं V बाई I, ये इम्पिडेंस इसके साथ हमेशा एक एंगल एसोसिएटेड होगा, और वो अराइज होगा बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इंडक्टर एंड कैपेसिटर वैल्यूज़। हाँ, तो सेम मैंने बताया था कि जिस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ रजिस्टर में अप्लाई होती हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ आर एप्लीकेबल टू इम्पिडेंसेस एज वेल। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं कि यू हैव सीरीज ऑफ इम्पिडेंसेस और इम्पिडेंसेस दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड दिस Z इक्विवेलेंट। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फर्दर रिड्यूस करके सर्किट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कंप्राइजिंग ऑफ ए सिंगल इम्पिडेंस Z इक्विवेलेंट। और Z इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सो ऑन अप टिल Zn। ठीक है। इसी तरीके से ये जो है, इसमें आपके पास में इम्पिडेंस इक्विवेलेंट, अगर इम्पिडेंस आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वन अपॉन Z इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन Z1 प्लस 1 अपॉन Z2 1 अपॉन Zn। Is this clear to all?
ये आप प्रूफ भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्रूफ कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बिल्कुल सेम जैसे आप रेजिस्टेंस के केस में प्रूफ करते हैं, यहाँ पे भी प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए, अभी एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। डिटरमिन द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियंस पर सेकेंड। अब एक बात तो कंफर्म है कि इम्पिडेंस आपकी, क्योंकि दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन ओमेगा, विच मीन्स दैट इम्पिडेंस चेंजेस विद फ्रिक्वेंसी। तो ये सर्किट आपको दिया हुआ है, इसका आपको इम्पिडेंस निकालना है जेड इन। तो एक मिनट, सॉल्यूशन अगर मैंने इसमें लिख रखा है, नहीं तो मैं करवा देता हूँ। सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है, चलिए मैं बता देता हूँ आपको। तो एक चीज़ ये है कि आप इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के इम्पिडेंसेस निकाल लीजिए। तो सर्किट को आप, आसान मेथड ये है कि सर्किट को दोबारा बना लीजिए और उस पर इम्पिडेंस वैल्यूज़ लिख दीजिए। तो सबसे पहले तो ये कि जितने रेजिस्टर हैं उनकी इम्पिडेंस चेंज नहीं होती, तो इसको आप Z इक्वल टू 100 लिख दीजिए। इसको Z2 मान लीजिए, या Z मत लिखिए। इसका इम्पिडेंस 100 है, इसका इम्पिडेंस 200 है। 1 मिली फैरेड का इम्पिडेंस कितना आएगा, इसको आप निकाल लीजिए। तो Z फॉर 1 मिली फैरेड कितना हो जाएगा, -j(XC), यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, -j(XC). तो इसको आप लिख सकते हैं -j1/ओमेगा C की वैल्यू कितनी है, 1 मिली फैरेड, 10⁻³ फैरेड। -j ओमेगा की वैल्यू आपने देखिए 10 रेडियंस पर सेकेंड ले रखी है, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 10⁻³ -j 10⁻²। ठीक है, तो -j100 आ गया। बात समझ आ गई। इसी तरीके से ये हो जाएगा -j100। ये इम्पिडेंस है इसकी। अच्छा, इम्पिडेंस की यूनिट जो है वो ओम्स रहती है, जिस तरीके से रजिस्टर की यूनिट है वही यूनिट इम्पिडेंस की होती है। तो ये सब ओम्स हैं। अब इसकी निकाल लीजिए, इंडक्टर की इम्पिडेंस कितनी होगी, Z फॉर 8 हेनरी प्लस JXL, J इंटू ओमेगा, L की वैल्यू कितनी है 8, तो 10 इंटू 8 ये हो जाएगा J80 ओम्स। तो ये वैल्यू आ गई J प्लस J80 ओम्स। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब देखिए, ये इम्पिडेंस और ये इम्पिडेंस सीरीज में है, 200 ओम्स और प्लस J80 ओम्स सीरीज में है ना। ये जैसे आप रेजिस्टर सर्किट सॉल्व करते हैं ना, सीरीज और पैरेलल आइडेंटिफाई करके उसी तरीके से इम्पिडेंस आइडेंटिफाई कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि ये दोनों इम्पिडेंस ये सीरीज में है, तो ये इनको ऐड करेंगे। 200 प्लस J0, एक है 200 प्लस J0 ये है, और दूसरा है 0 प्लस J80, इन दोनों को ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा 200 प्लस J80। अब ये यहाँ तक बात समझ में आ रही है। वही करा है, देखिए ये Z तो निकाल रखा है, ये सब Z निकाला हुआ है। नहीं 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 नहीं, इस तरह से नहीं होगा, नहीं गलत हो जाएगा वो भाई। आपके पास अगर, अच्छा चलिए मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ उसे। डीसी सर्किट के केस में मान लीजिए आपको जे में कन्फ्यूजन, क्या कन्फ्यूजन, मैं क्लियर करूँगा कन्फ्यूजन, आप बताइए। नहीं पुल,
हाँ देखिए, अब देखिए आप समझ लीजिए, ये सिचुएशन है क्योंकि मैंने बताया कि कैपेसिटर और इंडक्टर यूज़ होते हैं एसी सर्किट्स में, डीसी में ये बेकार है। अब मान लीजिए इनका इक्विवेलेंट मैंने निकाला। अब आप किसी डीसी सर्किट को डील कर रहे थे जिसमें आपके पास में आर रेजिस्टेंस है, R1 R2 R3 R4 R5, ये 5 रजिस्टर कनेक्टेड हैं, और मैंने कहा इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर ई क्यू। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? वही तो करा है यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे वही तो करा है। आपको सबसे पहली चीज़ यहाँ पे जो नज़र आएगी वो होगी R4 और R5 सीरीज़ में है। आप क्या करेंगे, इन दोनों को सीरीज़ में ले लेंगे और आप ये कहेंगे कि इनको ऐड कर दिया मैंने और ये बन गया R4 प्लस R5 सीरीज़ में आने के बाद, और ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें? R4 और R5 R3 के साथ पैरेलल में, यही करते हैं ना, यही सब करते हुए आ रहे हैं आप। इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, फिर उसके बाद R1 R2 और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज़ में हो जाएगा, इन तीनों को ऐड कर देंगे, फाइनल रेजिस्टेंस मिल जाता है REQ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि यही सेम कॉन्सेप्ट आपका इम्पिडेंस में अप्लाई होता है। इम्पिडेंस में आपने क्या करा, बस फ़र्क ये होता है क्योंकि ये एसी नेटवर्क है और इसमें कैपेसिटर और इंडक्टर हैं, इसलिए इसमें जे की टर्म्स मिलेंगे आपको। कैपेसिटर की करस्पॉन्डिंग माइनस जे करके वैल्यूज़ आएंगी और इंडक्टर के केस में आपको प्लस जे करके वैल्यूज़ मिलेंगी, लेकिन इनकी यूनिट सेम है, वही जो रेजिस्टेंस की होती है ओम्स। इसको हम कहते हैं इम्पिडेंस, और इनमें सारी वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी जो रेजिस्टेंस में अप्लाई होती है इन केस ऑफ डीसी नेटवर्क। तो अब हमने देखा ये दोनों इम्पिडेंस सीरीज़ में है, इन दोनों को ऐड करेंगे, एक की वैल्यू 200 ओम्स प्लस जे 0 है, दूसरी की वैल्यू 0 प्लस जे 80 है। इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसको मैं सेपरेट बना लेता हूँ, कैपेसिटर है, या इसको बॉक्स फॉर्म में शो कर दीजिए आप, क्योंकि थोड़ी सी कन्फ्यूजन लोगों को होती है। जिसमें आपको आसानी लगे वो आप कर लीजिएगा। तो अब ये इंडक्टर की इम्पिडेंस और ये रेजिस्टर का इम्पिडेंस सीरीज़ में है, इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस जे 80 ओम्स। और ये बाकी वैल्यू सब सेम रहेंगी, ये है माइनस जे 100 ओम, ये वैल्यू है माइनस जे 100 ओम्स, ये है 100 ओम्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके? इसमें किसी को डाउट तो नहीं है जी? अब देखिए ये दोनों इम्पिडेंस जो हैं ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब ये होगा कि आप फर्दर जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अब इसको सॉल्व करके आप एक इम्पिडेंस निकाल लेंगे जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस जे 100 ओम्स इन पैरेलल टू नीचे बना लेता हूँ इसे, माइनस जे 100 ओम्स इज इन पैरेलल टू 200 प्लस जे 80 ओम्स। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको निकालना है, और ये मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जब पैरेलल में दिए हुए होंगे इम्पिडेंस तो क्या होगा, Z इक्विवेलेंट पैरेलल की केस में विल बी इक्वल टू Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2, जिस तरह से रजिस्टर में करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ होगा क्योंकि Z1 Z2 इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले अगर ये कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है, रेक्टेंगुलर फॉर्म दी हुई है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने के लिए आप पहले इनको पोलर में कन्वर्ट करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, अच्छा इन दोनों को कार्टेशियन फॉर्म में ही ऐड करेंगे। बात समझ आ रही है सबके? इसको भी मैं करता हूँ, रुकिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई?
इस स्टेप तक सबके समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको ये आपका दिया हुआ है माइनस जे 100 ओम्स और ये है 100 ओम्स, और इसको मान लीजिए जेड डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो जेड डैश क्या है? जेड डैश इज माइनस जे 100 ओम्स इन पैरेलल विद 200 प्लस जे 80। तो जेड डैश को हम लिख सकते हैं माइनस जे 100 मल्टीप्लाइड बाई 200 प्लस जे 80 डिवाइड बाई माइनस जे 100 प्लस 200 प्लस जे 80। ये देखिए, ये वाली प्रॉपर्टी लगाई हमने, रेजिस्टर्स इन पैरेलल या इम्पिडेंसेस इन पैरेलल। बात समझ में आ गई? अब हाँ, इन दोनों वैल्यूज, ये देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में दी हुई है, 0 माइनस जे 100 और 200 प्लस जे 80, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म है। इन दोनों को मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप इसको कन्वर्ट कराएंगे पोलर फॉर्म में। तो माइनस जे 100 का तो पोलर फॉर्म हो जाएगा 100 एंगल माइनस 90 डिग्री इनटू, इसका बताइए मुझे जल्दी से कैलकुलेटर से, पोलर फॉर्म बताइए, डिग्री में बताइएगा, रेडियंस में नहीं, डिग्री में। टू 215 215.4 में छोड़ दे रहा हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है। एंगल बताइए, 21 प्लस 22 21.8 22 तकरीब आसपास ही है। 215 सही है, सबका सही है? ठीक है। हाँ, अब देखिए, ये मैंने ये पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना आसान है। नीचे में आपको पोलर फॉर्म कन्वर्ट नहीं करना है क्योंकि एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो इसको आप सिंपली ऐड कर देंगे 280 और ये हो जाएगा माइनस जे 20। बात समझ आ गई? अब इसको फर्दर आप क्या करेंगे, ये आर और ये आर ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 21500। एंगल क्या हो जाएगा? माइनस 90 प्लस 21.8, माइनस 90 प्लस 21.8 कितना आया? -68.2, -68.2 डिग्रीज डिवाइड बाई, अब देखिए ये जो है ना, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म दी हुई है 200 माइनस जे 80, और आपको डिवाइड करना है दो, यानी इनको फेजर्स को। तो अब 200 माइनस जे 80 को आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करा लेंगे। क्या आ रही है इसकी पोलर फॉर्म? 200 माइनस जे 80 की बताइए जल्दी से, कैलकुलेटर से बताइए निकाल के। टू हंड्रेड पॉइंट नाइन यानी 201, और एंगल कितना है? -5.71 डिग्रीज, 5.7 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए 21500 को डिवाइड करना आसान है 200.9 से। 21500 डिवाइड बाई 200.9, 107 बचाइए। तो इस चीज़ को फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ। तो आपके पास में अब आया 107, और एंगल आ जाएगा -68.2 प्लस 5.7, -62.5।
ये क्या वैल्यू आई, जेड डैश की वैल्यू आई पोलर फॉर्म में, ओम्स। ठीक है। अच्छा, एक बात का आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इस फॉर्म को रेक्टेंगुलर को पोलर में कन्वर्ट करा रहे हैं तो इसको आरएमएस में मत लीजिएगा, वरना यहाँ कन्फ्यूजन होगी। इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। बहरहाल वो कैलकुलेटर जो भी वैल्यू आपको दे रहा है उसी में लिख दीजिए, क्योंकि उसी से आपका फाइनल आंसर सही आएगा। नहीं, आरएमएस यहाँ नहीं लेना है, वोल्टेज और करंट में तो लेंगे आप, लेकिन यहाँ इम्पिडेंस कम। ठीक है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करते तो नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर आपको आरएमएस निकाल के नहीं दे रहा है। अगर आपने कहीं पे भी अपना यहाँ पे आपने आरएमएस वैल्यू लिख दी और बाद में आप भूल गए उसको दोबारा वापस √2 से मल्टीप्लाई करने में, या भूल गए कि आरएमएस वैल्यू है, तो आंसर गलत हो जाएगा फिर। इसलिए आप जैसे कैलकुलेटर निकाल के दे रहे हो वैसे लिख दीजिए। तो ये जी हाँ, देखिए हाँ, अब इसको वापस रेक्टेंगुलर में इसलिए करना होगा क्योंकि z इक्विवेलेंट जो है वो इन तीनों को तीनों का सम है, इन तीनों को ऐड कराना है आपको। यानी z इक्विवेलेंट अगर इसकी बात करें, z इक्विवेलेंट कितना आएगा, -j100 + 100 + z डैश आपने निकाला है 107 एंगल -62.5 डिग्रीज। अब ये जो है ये पोलर फॉर्म है, तो इसको ऐड कराना है अगर आप, ठीक है। अगर ये पोलर फॉर्म, ये कार्डिजन फॉर्म दी हुई है, ये भी कार्डिजन है, ये भी कार्डिजन है, तो इसे ऐड कराने के लिए आपको ये पोलर फॉर्म कन्वर्ट करनी होगी रेक्टेंगुलर या कार्डिजन फॉर्म में कैलकुलेटर से। तो करके बताइए कितनी आ रही है। -90 -j लगा देंगे, -j94। सब लोग चेक कर लीजिएगा ये वैल्यू आ रही है नहीं, -j100 + 100 + 49.4 -j94.9। आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू ऐड हो जाएगी, रियल पार्ट है तो ये हो जाएगा 149.4 और इमेजिनरी पार्ट ऐड हो जाएगा -194.9। ठीक है, ये आ गया इक्विवेलेंट इम्पिडेंस रेक्टेंगुलर फॉर्म में, फाइनल इम्पिडेंस ऑफ द गिवन सर्किट, जो सर्किट हम अभी देख रहे थे। ठीक है, ये समझ में आ गया सबके। जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन था आपका, डिटरमिन द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट एट ओमेगा इक्वल टू 10 रेडियंस। तो ओमेगा 10 रेडियंस पे आपको इनपुट इम्पिडेंस ये मिल गया। अब यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? जी ठीक है। अब जो क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं एग्ज़ाम में, उसमें इम्पिडेंस नहीं निकालना होगा, बल्कि आपको करंट निकालना होगा, पावर निकालना होगा, और वो सब निकालनी होंगी। यानी आप पावर फैक्टर निकालना होगा, एक्टिव रिएक्टिव पावर निकालना होगा। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, ये एक क्वेश्चन और है, इसको और समझ लीजिए, फिर नेक्स्ट उसको मैं बना दूंगा बाद में, या ट्यूटोरियल के लिए दे दूंगा उसे। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एक देखिए सर्किट दिया हुआ है, और योर अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फिर से वही इम्पिडेंस निकालना है, इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 एलिमेंट्स है, सिंपल एलिमेंट्स, और ये वोल्टेज सोर्स है। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 4। ओमेगा की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, cos 4t - 15 डिग्री से। ठीक है, जो t के साथ एसोसिएटेड टर्म है वो ओमेगा है। बात समझ आ गई सबके? अब देखिए, इसको इन्होंने पहले कन्वर्ट करा लिया पोलर फॉर्म में, ये वोल्टेज इनपुट है। तो 20 cos 4t - 15 को इन्होंने लिख दिया Vs 20 एंगल ऑफ -15 डिग्री, ओमेगा इज़ 4। 10 माइक्रो फेरेड की इन्होंने फिर निकाल ली, इम्पिडेंस निकाल लिया। तो -j(XC) होता है, j को नीचे ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये लिखा है इन्होंने 1/j ओमेगा c। इसकी वैल्यू आ गई -j25 ओम्स। यानी ये इम्पिडेंस आया
इस कैपेसिटर का 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर का इम्पिडेंस है -J25 ओम्स। इसी तरीके से 5 हेनरी का इम्पिडेंस कितना आएगा, JXL और J20 ओम्स आ गया, तो इसका इम्पिडेंस निकालिए J20 ओम्स। तो Z1 इज़ द इम्पिडेंस, अच्छा रजिस्टर का इम्पिडेंस वही रहेगा, R की वैल्यू रहती है। Z2 इज़ द इम्पिडेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर एंड 5 हेनरी इंडक्टर। इन दोनों का अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन लेंगे तो आपको Z2 मिल जाएगा। अब इसके बाद जो है Z2 क्या हो जाएगा, Z2 जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है -J25 का और J20 का, तो उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन ये फार्मूला दिया हुआ है, यानी ZC इंटू ZL डिवाइड बाई ZC प्लस ZL, ये आ गया J100। तो इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर और इंडक्टर का रिड्यूस हो जाएगा, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं J100। अब J100 सीरीज़ में हो जाएगा रजिस्टर से, ठीक है। एक मिनट मैं बताता हूँ, ये जो है ना, ये नहीं अभी पोलर की ज़रूरत, अच्छा ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है इसमें, क्योंकि आपके हाँ क्योंकि सब J फॉर्म है तो कोई ज़रूरत नहीं है पोलर रेक्टेंगुलर लगाने की। लेकिन हाँ डिवाइड भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई रियल पार्ट तो है नहीं भाई। ये J² हो जाएगा -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 25 इंटू 2500 हो गया, और ये नीचे आ जाएगा -5J। J को ऊपर ले जाएंगे तो प्लस J हो जाएगा, और 500 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा, 100 बचेगा, तो ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये Z1 है और Z2 ये सीरीज़ में है, तो इसको आप ऐड कर देंगे Z1 प्लस Z2, टोटल यानी फाइनल आपको इम्पिडेंस मिल जाएगा सर्किट का। अब इन्होंने फर्दर वो भी निकाल रखा है वोल्टेज, इसमें क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया है इनपुट इम्पिडेंस, लेकिन इन्होंने V0 निकाल, अच्छा तो ये इसको करेक्ट कर लीजिए, डिटरमिन दी, इसकी जगह पे आप लिख दिए V0, क्वेश्चन ये होना चाहिए, डिटरमिन V0 ऑफ द सर्किट, यानी ये वाला आपको वोल्टेज निकालना है। बात समझ आ गई जी, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? तो हाँ देखिए, अब V0 निकालने के लिए देखिए क्या आपने इम्पिडेंस निकाल लिया, V0 के लिए क्या करेंगे आप, हाँ एक मेथड सही है, आप ये कह रहे हैं थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन चलिए कॉन्सेप्ट है तो आप ठीक। 20 cos फोर, नहीं ये वोल्टेज वैल्यू दी है, प्लस माइनस लिखा है, देखिए इससे पता चल जाएगा ये वोल्टेज ये करंट, अगर यहाँ प्लस माइनस दिया हुआ है तो ये वोल्टेज वैल्यू है, अगर यहाँ एरो बना होता तो ये करंट वैल्यू होती। अगर इसमें आपको V0 निकालना है, V0 यानी वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विच इज़ सेम एज द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। यानी अगर पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास कहीं पे भी सप्लाई इस तरह से बनी है, अगर ये बनी है और यहाँ प्लस माइनस लिखा है, अंदर में प्लस माइनस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है AC सप्लाई और वोल्टेज सोर्स। ने बीच में ये आ गया ना, रजिस्टर आ गया, वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा यहाँ पे। जी हाँ वो देखिए, हाँ वो सब मेथड्स आपने पढ़ रखे हैं। अच्छा अगर आपको कहीं पे सोर्स इस तरह से दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है करंट सोर्स, एरो बना हुआ अगर। अब आ जाइए देखिए, इसको समझ लीजिए, दो रजिस्टर अगर आपके दिए हुए हैं, आपने क्या किया था अभी, यहाँ पे इक्विवेलेंट इम्पिडेंस Z2 निकाला हुआ है ना इन दोनों का, इसको आप फाइनली
ऐसे बना सकते हैं, ये Z1 है, Z2 है, और वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है V। Z2 की वैल्यू आपने ये निकाल ली J100। Z1 आपको दिया हुआ है 60 ओम्स। अच्छा, जो V नॉट वोल्ट, जी हाँ, जी जी हाँ, तो V नॉट ये वोल्टेज है, ठीक है भाई। इन दोनों एलिमेंट्स को, इंडक्टर और कैपेसिटर को, अगर आप इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल के Z2 निकाल ले रहे हैं तो वोल्टेज में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज दोनों के अक्रॉस सेम है। तो इसका मतलब ये कि इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी वोल्टेज वही रहेगा, V नॉट। यही बात समझ आ गई? ठीक है, गुड, ठीक है, गुड। अब देखिए, एक चीज़ आपने पढ़ी होगी, करंट डिवीजन और वोल्टेज डिवीजन, करंट डिवाइडर रूल और वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो जो मेथड आप लोगों ने बताया कि करंट निकाल के फिर वोल्टेज निकालना, वो भी ठीक है, लेकिन 2-3 स्टेप से आप और बच जाएंगे अगर आपको करंट डिवाइडर वोल्टेज डिवाइडर रूल आता है। तो वही रूल जो आप रेजिस्टर के केस में अप्लाई करते हैं वोल्टेज डिवीजन का, वो रूल आप यहाँ अप्लाई करें। जी जी हाँ, अगर आपके पास में R1 और R2 दिया हुआ था, ये V है, और आप कह रहे हैं कि R2 के क्रॉस कितना वोल्टेज है, इसको V डैश मान लीजिए, तो आप ये लिखते थे कि V डैश जो है, दिस इज इक्वल टू V इंटू R1 ये वोल्टेज डिवाइडर रूल था, ठीक है। R2 के क्रॉस जो वोल्टेज है, दैट इज इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज V डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस सीरीज R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई द रेजिस्टर इन विच द वोल्टेज इज टू बी। ये आता उसी से ही है जो आप कह रहे हैं ना, करंट निकाल के फिर वोल्टेज उससे मल्टीप्लाई कर दें रेजिस्टर से। तो ये क्या है, V अपॉन R1 प्लस R2 करंट ही तो है सर्किट का। ये दोनों के क्रॉस सेम होगा क्योंकि सीरीज कनेक्टेड है ना ये, तो जो R1 से करंट फ्लो हो रहा, वोल्टेज R2 के क्रॉस है इन दोनों टर्मिनल के बीच में। बिल्कुल, पूछिए पूछिए। जी नहीं 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 नहीं, वो गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा, जी हाँ हाँ, नेक्स्ट पेज में असल में इसलिए नहीं, जी जी मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट पेज इसलिए नहीं दिखा रहा था क्योंकि अगर आप में से किसी को वोल्टेज डिवाइडर रूल नहीं पड़ा होगा तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मुझे बताना था। दूसरी, हाँ हाँ ठीक है, तो वही रूल यहाँ पे अप्लाई किया है। देखिए, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाया है इन्होंने, V नॉट इज Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 इम्पिडेंस के केस में। ये हमने रजिस्टर के केस में पढ़ा था, यही सेम चीज़ इम्पिडेंस में अप्लाई होगी, ठीक है। ये इन्होंने वैल्यू फिर आप, जी हाँ मैं एक मिनट बता रहा हूँ, उस पर आ रहा हूँ, एक टाइम पे एक ही बता पाऊँगा। हाँ, तो अब देखिए ये चीज़ समझ में आ गई। ये पोलर फॉर्म में मिल गया, इसको फिर आपने वोल्टेज फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया वापस। यहाँ तक ये एक्सप्रेशन समझ में आ गया सबके, V नॉट का, ठीक है। अब देखिए, अब इन्होंने जो सवाल पूछा, इन्होंने ये पूछा कि क्यों हम इन दोनों का Z2 क्यों निकाल लें, इक्विवेलेंट क्यों निकाल लें। ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि हम लिख दें कि V नॉट VS है मल्टीप्लाइड बाई 60, एक मिनट, -10 माइक्रोफेरेड, यानी उसका अगर इम्पिडेंस की बात करें -20, हाँ ओमेगा C ये लिख दिया मैंने, ओमेगा C, और 60 -j, ये कह रहे हैं ना आप, ठीक है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैंने बताया कि ये जो एक्सप्रेशन है ये किसका है, ये करंट का है,
वी एस अपॉन 60 माइनस J25 करंट के करस्पॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो करंट है ना, इसमें ये सर्किट में करंट, एक करंट तो ये जा रहा है रजिस्टर में से, ठीक है। ये करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे और ये इस वाली ब्रांच में, डिवीजन होगा कि नहीं। इस वाले एक्सप्रेशन से पता ये चलता है कि ये वाला करंट आपने कंसिडर नहीं किया है। आपने ये मान लिया कि ये जो करंट आ रहा था 60 ओम से, ये सारा का सारा कैपेसिटर से फ्लो कर गया है, जिससे कि आंसर फिर गलत हो जाएगा।